I'm joined by Professor Ashwini Kumar. He's written on this subject. Sir, what did you make of the announcement of the Government of India on Tuesday? I think it's extremely important announcement and perhaps momentous announcement. If you look at the social history of the Republic of India, I think recognition of Sri Karpuri Thakurji, Jananayak, and I would say Mahanayak, from me, he's a Mahanayak from Bihar, was much awaited and much sought after. And this also signals a tectonic shift in the way we have, kind of valorized our national icons. What I look at, the national history in terms of Bharat Ratna, from elite to kind of a subaltern shift. In the case of Karpuriji Jananayak, this shift is very visible in the sense that I have written in my book, Community Warriors, were documenting Bihar in a much extensive and elaborate way. And I was referring to Karpuriji because, he made a shift from JP's elite cosmopolitan socialism to a vernacular subaltern socialism. And within the social history of socialism, Karpuriji stands out. So the recognition by Prime Minister is really momentous and signals what I call a shift in terms of the expanding arc of Hindutva surplus. If you say it's arc of the Hindutva surplus, I think the arc of Hindutva surplus was already exponentially increasing. But do you think that it's resilient enough to break into the arc of all the regional parties combined with the Congress? I mean, that's something that perhaps, regional parties have to really look at, how they are going to, they are going to look at this new national icon, Karpuri Thakurji. Let me tell you one thing, Kartike, because Karpuri Thakur's unique, social equity model is far more richer and significant than the Southern model. In political science, if you look at political scientists and political analysts, for good reason, have been celebrating the Southern model of social equity. But they will need to reconcile or consider the unique social equity model that has come from Bihar, which is far more elaborate, layered, and perhaps historic in the sense of determining the future of the nation in terms of social equity. Therefore, Karpuri Thakur's recognition in terms of Bharat Ratna, I consider a momentous step, a momentous moment in the national history, coinciding on the lighter note when Ram Lala is also coming home. It's not a. आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, बिल्कुल बोलिए। जो कह रहे हैं मैं उसी में एक चीज़ जोड़ना चाहता हूँ कि ये जो अनाउंसमेंट है मंगलवार का, ये अनाउंसमेंट असल में सोमवार को भी हुआ है। अगर आप इसे समझने की कोशिश करें कि मोहन भागवत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम मंदिर के प्रांगण से जो भाषण दे रहे हैं, उसमें दोनों एक ही बात कह रहे हैं, कोई छोटा नहीं है, गिलहरी भी महत्वपूर्ण है, हमें समन्वय का व्रत लेना है, हमें सबको साथ लेके चलना है, हमें किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करना है। राम, राष्ट्र और विश्व, ये तीन सीढ़ियों पे वो नरेंद्र मोदी जो 2014 में एक राज्य का मॉडल लेकर प्रचार में आते हैं, वो नरेंद्र मोदी जो 2019 में कहते हैं कि अगले 5 साल भारतवासियों के सपनों और आकांक्षाओं के 5 वर्ष होंगे। 2024 में वो क्या कहेंगे? वो कह रहे हैं राम, राष्ट्र और विश्व। और ये राष्ट्र बनाने की कल्पना संघ के शताब्दी वर्ष में प्रवेश करते समय एक और बड़े जनाधार के साथ में हुंकार भरने की जो संकल्पना है, इसको पूरा करने के लिए वो बहुत स्पष्ट कह रहे हैं सोमवार को कि कर्पूरी ठाकुर को हम देंगे भारत रत्न। उसकी घोषणा ऑफिशियली जब मंगलवार को होती है, तो देखिए जो अरुण आनंद जी कह रहे थे ना, उसमें एक बात समझनी पड़ेगी, ये कोई सदाश्रयता और महानता का बोध नहीं है राइट विंग का कि या भारतीय जनता पार्टी की राजनीति का कि हमको ये लोग छूटे हुए थे, कांग्रेस को तो कुछ दिखता नहीं है। ये बिल्कुल बात सही है कि कांग्रेस कहता है कि वी विल लुक इन द नेस्ट, तो बीजेपी कहती है वी विल टेक द रेस्ट।
बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो वो नेस्ट और रेस्ट की जो लड़ाई है ना, तो उन्होंने वल्लभ भाई, एप्रोप्रिएशन इज पार्ट ऑफ आरएसएस एंड बीजेपी पॉलिटिक्स फॉर लास्ट 2 डिकेड्स। देवरस के का जो सोशल इंजीनियरिंग का सिद्धांत है वो एप्रोप्रिएशन की थ्योरी पे बेस्ड है। संघ की पुस्तिकाओं में महात्मा गांधी मुझे बड़ी आरएसएस खुशी हुई कि इस शब्द का आपने इस्तेमाल किया, क्योंकि मेरा मानना है दैट इन मॉडर्न इंडिया इफ देयर आर 2 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पॉलिटिशियंस अकॉर्डिंग टू मी who reshape the politics actually, और उनकी लेगेसी बहुत बड़ी है, one is इंदिरा गांधी एंड सेकंड इज बाला साहब देवरास। बिल्कुल। तो अंबेडकर का जो भारत रत्न है, भीमसेन जोशी का जो भारत रत्न है, वाजपेयी जी भी बहुत राजनीतिक होकर भारत रत्न नहीं दे रहे हैं, कांग्रेस भी बहुत राजनीतिक होकर के भारत रत्न नहीं दे रही है। सचिन तेंदुलकर, लेकिन यहाँ पे गांधी का नाम सोमवार को रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के बाद मंच से लिए जाने का एक अर्थ है, वो अकारण नहीं आ गया है। बहुत लंबी लिस्ट है इनके पास उद्धरणों की, ये सुभाषितानी पढ़ने वाले लोग हैं, ये तमाम महापुरुषों को, वासुदेव, बलवंत फड़के, हेडगेवार, गोलवरकर, सबको कोट करने वाली बिरादरी है। इसको केवल एक कोट महात्मा गांधी का उस दिन समझ में आता है, उसके पीछे की कोई वजह रही होगी। सोमवार को, मंगलवार को कर्पूरी ठाकुर का नाम भारत रत्न के तौर पे आना, उसकी एक वजह है। भारतीय जनता पार्टी में, खास करके मोदी युग की भाजपा में, अकारण कुछ नहीं होता। हर चीज के पीछे की प्रदक्षिणा और परिपेक्ष हमेशा स्थापित। इस पे तो अरुण के जाना पड़ेगा। अरुण, अकारण कुछ नहीं होता। देखिए, पहली चीज मैं थोड़ा सा आपको करेक्ट कर दूं, हालांकि मैं कोई संघ का स्पोक्स पर्सन नहीं हूं, पर मेरा थोड़ा सा आपसे कि बाला साहब देवरस वाज नॉट अ पॉलिटिशियन, ठीक है ना। जिनको राजनीति करनी होती है संघ उनको भेज देता है बीजेपी के अंदर। तो दूसरी चीज ये है कि मैं थोड़ा सा एक और चीज आपको वो बताना चाहता हूं कि बाला साहब एक्चुअली जो सोशल इंजीनियरिंग की जो शुरुआत हुई, जो पहला सोशल इंजीनियरिंग का बड़ा वो था, वो गुरुजी के समय जो गोलवलकर जो दूसरे सरसंघ चालक थे, क्योंकि 1966 में जो प्रथम विश्व हिंदू सम्मेलन हुआ और 1900 अर्ली 1960s में जब 1960s में जब विश्व हिंदू परिषद का गठन हुआ, तो विश्व हिंदू परिषद के गठन का जो स्पेसिफिक पर्पस था, 2 पर्पस थे। पहला था विदेशों के अंदर जितने भी भारतीय डायस्पोरा है उसके कल्चरल रूट्स जो है वो इंटैक्ट रहे। दूसरा, और वो हिंदुत्व के साथ जुड़े रहे, उसको काम करना, जो उसके लिए काम करना। दूसरा कि जो समाज, हिंदू समाज में जो कास्ट को लेकर फॉल्ट लाइन है उसको दूर करना, और उसको दूर करने के लिए सभी धर्माचार्यों को एक मंच पर लाना, और उस मंच से उनसे यह कहलवाना कि जातिगत भेदभाव नहीं होना चाहिए। ये 60 के दशक में होना एक बहुत बड़ी बात थी।